Welcome students to our YouTube channel SRK All in One Class. Today we are going to discuss the question and answer session of chapter 1 of class 9th subject science. Okay, and the chapter is matter surrounding in our surroundings. Okay, I have already explained about the theory portion, and on the basis of theory there is some questions, and these are textbook questions. Here this is a question and answer session. First we see at the page number 3 of the book there are some questions. Now we are discussing there. Here, which of the following are matter? Which of the following are matter? Let me explain who are the matters and who are not. So first, what is matter? We have already studied that matter which occupy the space and have a mass. Occupy the space and have a mass. It is a matter. So chair is occupy space. Chair is a matter. This is a matter. Air, yes, it is a matter. Love, no, it is just feeling. Smell, it is not a matter. It is not occupy space. Hat is not a matter. Almond is a matter. Okay, is the answer. Now next question, give reason. The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. Why this happens? Because the hot sizzling food, the kinetic energy of the particular hot sizzling food is more. Okay, because of the temperature rises, the kinetic energy of the particles also rises. And the particles diffuse in the air. So we feel the smell from the several meters away because of hot food. Question number 2. Question number 3. A diver is able to cut through water in swimming pool. Which properties of the matter does it show? So it means, what is diver? Diver means who dive in the swimming pool. ओके, गोताखोर, हिंदी में बोल सकते हैं सो गोताखोर. तो वो स्विमिंग पूल में डाइव करता है और स्विमिंग पूल में वाटर को कट करता है. तो क्या मैटर की प्रॉपर्टी से? बिकॉज द प्रॉपर्टी ये है कि उसकी जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो देयर इज वेरी हाई बिकॉज ऑफ लिक्विड. वाटर क्या है? इट इज अ लिक्विड और लिक्विड इंटरमोलिकुलर स्पेस एज कंपेयर टू सॉलिड हाई होता है, इसीलिए वो वाटर को कट करके अंदर जा पाता है. ओके, रीजन क्लियर? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर? मैटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, मैटर की नहीं, मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. कैरेक्टरिस्टिक होती है फर्स्ट द इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन देम. ठीक है, they have the intermolecular spaces. The particles have some attraction forces between them. Second property. Third property is what is? They occupy the space and has a mass. Third property. Okay, the third characteristic. Fourth characteristic, as the temperature rise, kinetic energy of the particles also rise. Okay, so and the particles are moving fast. This is another property. And what is the last property? The last property is the diffusion. The last property is the intermixing of the particles of any two types of matter. Is also one of the characteristics of the matter. So this is I completed. Now come on the page number 6. Page number 6 also has some questions. Let us discuss. Arrange the following in order to increase the density. What is density? Density का the formula of density is equal to mass upon volume. Okay, suppose we take same volume of the different matter or different type of things, same volume, and the mass is high of same volume. In which matter the density is high? जिसका अगर हमें सेम वॉल्यूम सभी का लूँ, जो भी हमें मैटर दिए हैं, जो भी हमें मैटर दिए हैं या थिंग्स दिए, उनका सेम वॉल्यूम, मतलब एक बॉक्स में अगर सबको रखूँ, बॉक्स हो गया, इस बॉक्स में अगर मैं सबको रखूँ तो वॉल्यूम सेम हो गया. अब उस बॉक्स में जितनी चीज़ आई उसका मास रेट करूँ तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि डेंसिटी होती है मास अपन वॉल्यूम. अब एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन, तो किसका डेंसिटी सबसे कम होगी? यस, ये दिस इज द वन. चिमनी के जो एग्जॉस्ट हो रही वो जिसकी फर्स्ट नंबर. सेकंड आई कॉटन की
कोटिंग इज वेरी लेस वेट, उसका मास कम होगा. फिर देन वाटर, थर्ड नंबर इज वाटर. देन फोर्थ इज हनी, फिफ्थ इज chalk, and last one is iron. Okay, iron is too heavy, so same volume have different mass. So those who have more mass, density is more. Those who have less mass in the same volume have less density. Okay, now tabulate the characteristics of the stertometer. I already explained in my theoretical lecture. Please refer my theoretical lecture, the characteristics of the stertometer. Question number 3. Comment rigidity, compressibility, fluidity, filling a gas container, kinetic energy, density. One by one we see. Rigidity, it is tendency of a matter to retain in its own position. It is called rigidity. So solid have the rigidity, liquid has less rigidity, and gas has negligible rigidity. Compressibility, the compressibility is the ability of a matter to compress. Okay, so those matter who have intermolecular space is more ability to compress, the compressibility high. So gas have high compressibility because intermolecular space are more. Liquid less compressibility as compared to gas, and solid have negligible compressibility. Fluidity means the tendency to flow. So those because of its kinetic energy of the particles of the matter. In gas the kinetic energy is more, and the force between the two particles, the attraction force is very less. So the fluidity is more in gas than in liquid, is less than the gas but more than solid, and solid have very very less fluidity. Filling a gas container, it means filling a gas container. We can fill a gas container by we can fill a container by gas. Okay, so in a we can say that a gas can fill a container due to its particles of matter. The intermolecular space between the particles is more, and the particles have the kinetic energy more in the gas, so it fills the containers. They are moving. Last one, kinetic energy. Sorry, second last, kinetic energy. What is kinetic energy? The energy that is used by a particle for motion. एक energy that is used by particles of the matter for motion is called kinetic energy. Okay, and what density? Density I already explained. Density is equal to mass upon volume. This is density. Next question. Third question complete. Fourth, give reason. A gas fills completely the vessel in which it kept. I already explained why gas fills the completely, because the intermolecular space is more and it adds a more kinetic energy, so it already completely fill the vessel. Second, a gas exerts pressure on the wall of the container. Similarly, in a container, if a gas fills, the kinetic energy of the particles of the gas is more, so it moves and it hits the wall of the container, so it exerts the pressure on it. Complete. See, a wooden table should be called solid. Why? Because solid have a definite shape and definite distinct boundaries. Definite shape and distinct boundaries and definite size. So table have definite shape and distinct boundaries. So it's a solid. Easily move one hand in air but not on solid block. Why we move easy on hand block? Because the intermolecular space in between the air is very very more. ठीक है? And in solid the intermolecular space is very very less, so we cannot move our hand in a solid block either until and unless I am a karate expert. Okay, so easily move our hand in air. This is the reason and why it not in solid block. Okay, let's take another questions of the same chapter at page number 6. The question number 4 here. Liquid generally have lower density as compared to solid. We know that density is equal to mass upon volume. So at same volume, the mass of the solid, generally it does not always happen, but generally the density of a liquid is low as compared to solid. But you must have observed that ice floats on water. Find out why. But in water, ice float. Ice never sink. Why? What is the reason?
The reason is that the density of ice is low as compared to water. ठीक है, that reason is simple. Density of ice is less than the density of water. ठीक है, if we measure both the density of ice is low as compared to water. And why it happens? Because when the water converts into ice, the structure of ice is just like a cage. Okay, and the intermolecular space between the in ice is far away. Okay, so the reason is that density ice is less and density of water is more. So that's why ice floats on the water. कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से अगर कम होगी तो पानी पे तैरेगा. चाहे आइस की बात नहीं, अगर लकड़ी ले लो, लकड़ी की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है, इसलिए वो पानी पे तैरता है, पानी पे फ्लोट करता है. कोई प्लास्टिक की डेंसिटी अगर वाटर की डेंसिटी से कम होती है, जो इसलिए वो पानी पे तैरता है. और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे स्टोन ले लो, स्टोन की डेंसिटी हमेशा हाई होगी वाटर से, इसलिए वो सिंक हो जाता है. तो जिसकी डेंसिटी वाटर से हाई है वो फ्लोट हो जाएगा, वो सिंक हो जाएगा. डेंसिटी अगर कम है तो फ्लोट होगा. सिंपल. कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर सेल्सियस केस. इसको हमको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है. केल्विन है, के मींस केल्विन. हम जानते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 केल्विन. वी नो दैट. अब 0 है तो उसमें 300 केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो कितना हो जाएगा 300 केल्विन. इसमें तो माइनस 273 कर दो, यानी कि 300 माइनस 273 जो आएगा वो डिग्री सेंटीग्रेड में होगा. ओके, कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये दिस आर द एग्जांपल्स. 573 सिमिलरली इसमें 273 का माइनस कर दूंगा तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा. 300 इसका आंसर हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 9. व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर. इसमें फिजिकल स्टेट क्या होगी? 250 डिग्री सेंटीग्रेड और 250 डिग्री सेंटीग्रेड. अब हम जानते हैं कि 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, 0 से अगर इधर है टेम्परेचर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर टेम्परेचर इधर है, कम है, तो वो आइस होगा. 0 से 100 के बीच में वो लिक्विड होता है, आइस. और 100 से ऊपर क्या होगा? वेपर होगा. ओके, अब 0 से कम, अब 250 का है, 100 से ज़्यादा, तो यहाँ क्या होगा? दैट इज अ गैस या वेपर लिख सकते हैं हम. 100 डिग्री पर दोनों होता है, लिक्विड भी होता है और वेपर भी होता है. ठीक है, लिक्विड एंड वेपर बोथ, क्योंकि उसके अंदर लेटेंट हीट होती है जो उसको वेपर में कन्वर्ट कर रही होती है. तो लेटेंट हीट अगर कम हुई तो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा. इधर लिक्विड और वेपर. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज फिनिश्ड. थर्ड, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट. अब कोई भी सब्सटेंस टेम्परेचर उसका कांस्टेंट क्यों होता है? जब वो अपनी स्टेट को चेंज कर रहा होता है. जैसे लिक्विड, मैंने बताया एग्जांपल, आइस अगर लिक्विड में कन्वर्ट होगी, आइस अगर लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट. लेटेंट हीट एक ऐसी चीज है, एक ऐसा हीट है जो हीट एब्जॉर्व करके रखती है अपने पास. इट गेन हीट्स, और उस समय टेम्परेचर को राइज नहीं करती, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और अपनी स्टेट को चेंज करती है. इट हैपन्स इन द फ्रॉम सॉलिड आइस टू लिक्विड, आइस टू वाटर एंड वाटर टू ड्यूरिंग वेपोरेशन, वाटर टू गैस, वाटर टू वेपर. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. Suggest a method to liquefy atmospheric gases. There are two methods to liquefy atmospheric gases. Atmospheric gases means oxygen, nitrogen, which are in our surroundings. These gases are called atmospheric gases. So, by which method we can liquefy? Liquefied means to convert into liquid. Okay, there are two types of method. Either we reduce the temperature, और इंक्रीज द प्रेशर. दो मेथड है. या तो हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? सॉरी, टेम्परेचर को रिड्यूस कर दें. टेम्परेचर को अगर रिड्यूस कर दें, कम कर देंगे तो क्या होगा? वो लिक्विड हो जाएगी. और या फिर जो प्रेशर है, प्रेशर को मैं बढ़ा दूं, उनके इंटरमोलिकुलर फोर्स को पास में तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. दो मेथड हो सकते हैं. Why does this desert cooler cool better on a high tide? This is the question at page number 10. Question number 1. डेजर्ट कूलर क्यों कूल बेटर करता है गर्मी के दिनों में? देखिए, गर्मी के दिन जो होते हैं, हॉट ड्राई डे जो होते हैं,
उसमें ह्यूमिडिटी कम होती है, ठीक है। एयर में ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी में मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कम होगी तो एयर के अंदर जो और मॉइस्चर कंटेंट आने की पॉसिबिलिटी है। अब जब क्या होता है, कूलर क्या होता है, कूलर जब उसका वाटर स्प्रिंकलिंग होता है उससे जो मॉइस्चर उसके वेपर कन्वर्ट होते हैं एयर में, उससे उसकी आसपास की जो सराउंडिंग्स है वो कन्वर्ट हो जाती है और उसका सराउंडिंग्स कूल हो जाती है और वो फैन जो होता है फैन उसको अंदर कूलिंग एयर को भेजता है। इससे कूलर डेजर्ट कूलर बेटर कूल करता है हॉट ड्राई एयर में। हाउ डज द वाटर कीप्ड इन अर्थन पॉट, अर्थन मटका जो जनरली हम घर में मटका रखते हैं, बिकम कूल ड्यूरिंग समर। तो क्यों करता है, देखिए मटका जो होता है उसमें क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। वो छेद क्या करते हैं, जब पानी उनमें से आता है तो वो पानी में जब भरते हैं मटके में तो वो पानी छोटे छोटे से थोड़ा पानी बाहर आता है, हल्का हल्का हल्का, जो हमको दिखता नहीं नेक नाइट से। और वो पानी जो होता है वो इवेपोरेशन होता है। इसका रीजन क्या है, इवेपोरेशन। जो पानी इवेपोरेट होगा उसके कारण क्या होगा, उसके कारण जो इट टेक्स कूलिंग इफेक्ट, उससे कूलिंग इफेक्ट हो जाता है उस पानी का और पानी हमें ठंडा हो जाता है और हमें ठंडा लगता है पानी। वाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल, सिमिलरली इवेपोरेशन। जब हमारे पाम पर हथेली पर कभी एसीटोन या पेट्रोल डालते हैं तो एसीटोन या पेट्रोल क्या होता है, जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है, इवेपोरेट। जब इवेपोरेशन होगा तो उससे हमारा हाथ ठंडा होगा। इवेपोरेशन में क्या होता है, उसकी लॉस ऑफ एनर्जी होती है जिससे हमें हाथ ठंडा लगता है। इसका भी रीजन वही इवेपोरेशन। नेक्स्ट, वाई आर वी एबल टू सीप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सोसर अदर देन कप। हमें सोसर का मतलब प्लेट, जो प्लेट होती है उसमें चाय जल्दी ठंडी होती है या मिल्क जल्दी ठंडा होता है एज कम्पेयर टू कप। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि जब हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया, क्या कर दिया हमने, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया जब बढ़ा देता हूं मैं किसी का, टू इंक्रीज सरफेस एरिया, जब सरफेस एरिया बढ़ा दूंगा तो उसके जो पार्टिकल्स है वो एटमॉस्फेयर में ज्यादा एक्सपोज होंगे। द पार्टिकल एक्सपोज इन द एटमॉस्फेयर इज मोर। अब ज्यादा एक्सपोज होंगे तो उनका इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, पार्टिकल्स का इवेपोरेशन ज्यादा होगा इसलिए जल्दी ठंडे होंगे। और कप में सरफेस एरिया का एक्सपोजर कम होता है इसलिए वो इवेपोरेशन भी धीरे धीरे होता है, इसलिए वो धीरे ठंडी होती चाय। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप्स ऑफ क्लोथ शुड वी वियर इन समर। हमें समर में कौन से कपड़े पहनने चाहिए, सिंपल आंसर लाइट कॉटन क्लॉथ्स, लाइट कलर कॉटन क्लॉथ। वाई, कॉटन क्या करता है, देखिए कॉटन क्लॉथ जो पहनते हैं हम तो वो हमारे जो हमारा स्वेट आता है, स्वेट समर में जो स्वेट आएगा उसको एब्जॉर्ब करता है। और जब एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद उसका इवेपोरेशन हो जाता है जिससे हमें थोड़ा सा कूलिंग लगती है। बाकी दूसरे कपड़े जो होंगे वो तो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं स्वेट को और उसका इवेपोरेशन इतना फास्ट नहीं होगा। तो ये रीजन है और ये हमारे क्वेश्चंस। जो आगे हम क्वेश्चंस करते हैं इसके पेज नंबर 12 पे जो चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सिंपल है, केवल जो टेम्परेचर उनको सेल्सियस को केल्विन में बदलना और केल्विन को सेल्सियस में बदलना जो कि मैं सिखा चुका हूँ तो आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजन बताना है। नेफ्थलीन बॉल डिसअपियर विद टाइम विद लिविंग एनी सॉलिड, विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, या विदाउट आएगा, विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। तो नेफ्थलीन जो है वो जो बॉल है वो डिसअपियर हो जाती है विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। उसका रीजन क्या है, इसका रीजन है वेपोराइजेशन, इवेपोरेशन, ठीक है। क्योंकि जब आप बॉल को आप डालते हो नेफ्थलीन बॉल को तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स एयर में क्या होते हैं, वेपोराइज हो जाते हैं। तो रीजन इज इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। ओके, सेकंड, तो फर्स्ट इज कंप्लीट। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। क्यों आ जाती है हमें बहुत दूर से भी परफ्यूम की स्मेल, बिकॉज जब इसमें जो डिफ्यूजन की जो एक कैरेक्टरिस्टिक होती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर में वो परफ्यूम में ज़्यादा होती है। तो उसके जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम, वो डिफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्यूज का मतलब मिलना, डिफ्यूज इन द एयर में डिफ्यूज, इसलिए। और उन पार्टिकल्स में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो डिफ्यूज होंगे फिर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी तो
उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से हमें और डिफ्यूजन की वजह से हमें बहुत दूर तक भी उस परफ्यूम की स्मेल आती है, ठीक है, ड्यू टू डिफ्यूजन एंड काइनेटिक एनर्जी, डिफ्यूजन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, ये दो रीजन है, ठीक है। सेकंड भी हो गया, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ये जो तीन सब्सटेंस दिए हमें, इनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना, मतलब बढ़ता हुआ क्रम, जिसमें फोर्स सबसे ज़्यादा है, जो सबसे फोर्स अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम है वो पहले आएगा, उससे फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा। तो देखिए सॉलिड में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम होता है। तो ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है, शुगर सॉलिड है, वाटर क्या है, लिक्विड है। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स किसमें होगा, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन कम होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम ऑक्सीजन होगा अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे वाटर और थर्ड पे शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीट। फिफ्थ, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 और 100। देखिए वाटर के बारे में हम जानते हैं, पहले बता चुका हूँ, वाटर जो है 0 से लेके 100 तक क्या होता है, लिक्विड होता है। 100 से कम क्या होगा, सॉलिड, यानी कि आइस बन जाएगी, और 100 से अगर ऊपर होगा तो क्या बनेगा, वो वेपर बन जाएगा, यानी गैस बन जाएगा, वेपर बोल दो या गैस बन जाएगा, ठीक है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो क्या होगा, वो लिक्विड होगा, उसकी स्टेट बतानी, दैट इज लिक्विड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो या तो लिक्विड होगा और गैस होगा, क्योंकि अगर उसमें लेटेंट लिक्विड होगा या फिर सॉलिड होगा, सॉरी, क्योंकि जब आइस मेल्ट होती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ लेटेंट हीट होती है, लेटेंट हीट से तो पूरा ही लिक्विड हो जाएगा, बट लेटेंट हीट अगर कम हुई तो वो पूरा कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो या तो लिक्विड होगा, सॉलिड होगा। सिमिलरली 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, वेपर होगा, या फिर क्या होगा, वेपर होगा या फिर लिक्विड होगा। ओके, सो दिस आर द आंसर 5। क्वेश्चन नंबर 6, गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर वाटर इज लिक्विड और अलमीरा इज सॉलिड। रूम टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड क्यों है, सिंपल सा आंसर है, रूम टेम्परेचर पर जो वाटर का, सबसे पहले वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो, रूम टेम्परेचर का मतलब कितना होता है, रूम टेम्परेचर 30 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, ठीक है, या 25, थोड़ा ठंडा अगर मौसम है, सर्दियों का टाइम है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड इनके बीच में रहता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है ये, तो इसलिए वो लिक्विड है। और आयरन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो बहुत ही हाई है, बहुत ही हाई है, ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे वो क्या होगा, सॉलिड होगा। ओके, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, आयरन अलमीरा का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई है, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, Why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? देखिए 273 केल्विन का मतलब क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर ज़्यादा जो कूलिंग किस में इफेक्टिव ज़्यादा होगी, आइस में या वाटर में? तो कूलिंग जो होगी वो आइस में ज़्यादा होगी। क्यों, देखिए जब आइस जब मेल्ट होके वाटर बनता है, ठीक है, कितने पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्ट होता है। अब मैंने समझाया था, लेटेंट हीट समझाया था, जब आइस मेल्ट होती है वाटर में तो उसके अंदर कुछ ना कुछ लेटेंट हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, और जब टेम्परेचर नहीं बढ़ता, टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है 0 डिग्री से, तो पूरी आइस उस लेटेंट हीट के कारण वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब आइस जो होगी अगर लेटेंट हीट आ गई तो इसका मतलब उस टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो हमें तो टेम्परेचर कम चाहिए, कूलिंग का मतलब कम टेम्परेचर, यानी कि आइस जो है वो ज़्यादा कूल करेगा, ठीक है। इसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस इज मोर कूलिंग देन द वाटर। रीजन, बिकॉज वाटर विच कन्वर्ट्स फ्रॉम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हैव लेटेंट हीट होगी, इसलिए वो थोड़ा इतना ठंडा नहीं लगेगा, आइस में ठंडा ज़्यादा लगेगा, मोर कूल। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर, स्टीम वाटर? स्टीम मतलब भाप, और बॉइलिंग वाटर मतलब जो पानी बॉईल होता है। तो कौन सा ज़्यादा खतरनाक है, किससे हमें बर्न्स, किससे हम ज़्यादा जलेंगे, गर्म पानी से, बॉइलिंग वाटर जो बॉईल हो रहा है, या फिर स्टीम से?
तो देखिए जब पानी बॉईल होता है, वाटर का कितने डिग्री सेंटीग्रेड बॉईल होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। देखिए जब पानी जब बॉईल होता है, ये वाटर और ये स्टीम जब बनती है एट किस पे बनती है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, वाटर के अंदर कुछ लेटेंट हीट हो जाएगी, एब्जॉर्ब होगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा उसी टेम्परेचर पर स्टीम भी आ जाएगी। तो यानी कि कुछ ना कुछ लेटेंट हीट हुई, उसके कारण वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें हीट ज़्यादा होगी, किसमें, हीट स्टीम में हीट ज़्यादा होगी, इसलिए हमें ज़्यादा बर्न ज़्यादा होगा किसमें, स्टीम में, वाटर बॉइलिंग वाटर की तुलना में, ठीक है। एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर स्टीम है मोर सीवियर बर्न्स, स्टीम में बर्न ज़्यादा होगा बॉइलिंग वाटर बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, नेम ABCD इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये फॉलोइंग डायग्राम में सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से गैस। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अलग अलग प्रोसेस है इसमें। देखिए ये हम पढ़ चुके हैं थ्योरी क्लास में, एक बार फिर पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ये सॉलिड से लिक्विड बनना है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्यूजन, FUSION फ्यूजन। लिक्विड से कोई चीज गैस बनती है, इसको क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। ओके, देन अगेन गैस से वापस लिक्विड बनती है, इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। देन लिक्विड से अगर कोई सॉलिड बनेगी उसको क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। अब चाहे सॉलिड से डायरेक्ट गैस बने और गैस से डायरेक्ट सॉलिड बने, दोनों प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन, और इसको भी बोलेंगे सब्लिमेशन। ओके, सो दिस आर आवर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन ऑफ चैप्टर 1 क्लास 9 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। थैंक यू।